You are currently the only person in this conference. Hello. Yes. Hello. Am I audible, guys? Hello. Yes. Yes, sir. तो network issue की वजह से call cut हो गया था. So yes, so No. Madhya, that was for discussing about the same thing like doctor report, everything. Like for example, I am making a health cloud software. Okay, like whoever is submitting, like any new patient is coming. So first of all, we are creating a patient report. What diseases he want, what is an OPT that we are doing for him, or what are the next other things that we are doing for him. So that everything we can capture. Okay, so this is how end-to-end software Salesforce हमको प्रोवाइड करता है. Okay, निदेश क्लियर हुआ. तो इसकी वजह से हमको क्लाउड्स की नीड होती है. तो ये सब चीज़ें हम क्लाउड्स की हेल्प से करते हैं. अगर कोई हेल्थ क्लाउड का है तो हेल्थ क्लाउड का करेंगे. पहला एग्जांपल मैंने एजुकेशन क्लाउड का दिया था. अगर हमको कस्टमर्स को सपोज करो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी, ठीक है, इफ आई हैव क्रिएटेड सिंपल वेबसाइट, ठीक है. अब मैंने एक न्यू लैपटॉप की सपोज करो if I open a new laptop company. Okay, now if I open a new laptop company, now I want that people in that particular laptop company, I am selling our laptop. Now somehow some laptop is not working fine. कोई laptop ढंग से काम नहीं कर रहा है. Okay, the laptop is not working as expected. There is some software issues or there is some hardware issues. So I want the people on like people from that particular things can come and can resolve my issues. Okay, so for on the website itself I am raising a case. जैसे मैंने वेबसाइट पे केस रेज करा, तो जैसे मैंने वेबसाइट पे केस रेज कर दिया, the people will be coming and then they will be start resolving the issue over here. Okay, I hope I am clear on this. Okay, Yep. great. Now what you need to do, guys, again sharing my screen. Salesforce I have told you, CRM I have told you what exactly the CRM is. Okay, now why Salesforce? Okay, so for example, if I want to build this website, now if I need to build this website, so earlier there are a lot of options. Sorry, now there are a lot of options which are available, but earlier there are not having a lot of options which are available to build this particular website. So how I will do? If I need to build this particular website, then in that case only the option of C and Java is available. So that is an issue because only the option of C and Java is available, and every time I need to install the application to do the things. So every time I need to install the applications, and only the option of C and Java is available. So that's what client says. Can you build such a platform over which we don't need to install the application? And even if the costing from is high from Java, you cannot build such UI as well. No predefined features will be getting, no cloud features will be getting, and the most important thing is every time I need to install the application. So client says develop such a platform in which you don't need to install anything here. So we developed the concept of cloud computing, and different cloud vendors came up into the picture like Salesforce, SAP, Siebel, Tipco, Zoho. Now, why are these vendors? Because they are providing services on the rental basis. Okay, so that's why these are called vendors. Okay, now we are having three features. One is SaaS, one is PaaS, and one is IaaS. What is SaaS? That is a predefined software, and we are working on that particular software. Like स्टैंडर्ड फीचर्स. ओके, सो अगर सिर्फ स्टैंडर्ड फीचर्स पे अगर हमको वर्क करना है, दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ओनली ऑन प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. Example is Salesforce. That means in the Salesforce also we are getting lot of standard features, and on that standard features we are working over here. In the similar manner, we are working on let's suppose
Tele ERP application. We don't know what is exactly inside this, but we are working on the standard features of that particular application. So whenever if I need to work on the standard features, predefined features, that is called software as a service. Now, what is called platform as a service? PaaS. That means we are getting a platform over which we can do the customization and we can do the coding. Whatever coding that I want to do, I can do that for coding, and whatever customization if I want to do, I can do that customization on that. So that is called PaaS, platform as a service. The last one, IaaS. What is an IaaS? We are getting a particular infrastructure over which we have to work. Like for example, if this training is offline, so if this training is offline, then you are sitting in the Chroma campus and you are working on that. So I want to do the same part for you. If we are getting the particular infrastructure, okay. So if we are getting the particular infrastructure, then that means how you are going to use the infrastructure of Salesforce. So how you are going to use the infrastructure of Salesforce, that is important. Okay. So how the Salesforce says that they are having lot of clients, प्रीमियम clients भी है, जैसे बैंकिंग clients हैं हमारे पास, ठीक है. हमारे पास एक न्यूजीलैंड का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका प्रोजेक्ट भी सेल्स फोर्स पे चल रहा है, और भी काफ़ी सारी हमारे पास क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनके प्रोजेक्ट सेल्स फोर्स पे चल रहे हैं. सो हाउ दे कैन ट्रस्ट दैट द डाटा वुड नॉट बी ब्रीच्ड, उनका डाटा ब्रीच नहीं होगा. द ट्रस्ट विल कम्स फ्रॉम द सर्वर्स. हम सेल्स फोर्स में बोल रहे हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट worldwide, we are providing you 3 servers in which we are going to provide you the security so your data will not be breached. Like Asia Pacific हो गया, Europe हो गया, North America हो गया. Each server will be having around 8,000 orgs as well. Server में कितनी orgs है? 8,000 orgs भी हमारे पास. And in 8,000 orgs, it can be free or it can be paid as well. Okay, clear है? Pritesh and Madhya, clear? जी Yes, sir. So the very first concept that we get is objects. Objects is nothing but to hold the record information in Salesforce. If I want to store the record information, in that case we need to go with the concept of an object. And the objects we are having 2 types. One is standard, one is custom. Standard means the objects which are created by Salesforce itself, and custom means the objects which we are going to create based on the requirement. तो जैसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, केस एंड कैंपेन. कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. ओके, नाउ हाउ आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट. ओके, ओके, मेरे को और भी वर्क नहीं कर रही है. आपको पता है हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स? याद है लास्ट टाइम कैसे क्रिएट करे थे? जी ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके. Yes. When you create it, till the time I will just get one org. Okay. आपको ये पता है Pritesh, how we can create an object? Yes, sir. ठीक है. सो पहले आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स दोबारा क्रिएट करो, एंड आई थिंक टैब भी मैंने क्रिएट कराया था, राइट?
टैब भी क्रिएट कर लो। जी ठीक है, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो कुछ और ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे अगर आपके स्टूडेंट पोजीशन एंड कैंडिडेट ऑब्जेक्ट हैं तो आप ले लो, हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट ले लो, डॉक्टर ले लो, पेशेंट ले लो। ठीक है, create the objects, create the tabs and try to create the records as well। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं और आई विल चेक इट आउट।
दृश्यबिंदु मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट मैनेजर पे एम्प्लॉय कस्टम ऑब्जेक्ट में। टैब क्रिएट करा आपने? टैब भी इसी से करना है सेटअप में जाके, और किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। या तो आप यू कैन क्रिएट वाइल जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बेसिस कहीं भी कर सकते हो, और फिर बाद में अगर सेटअप में जाके टैब्स में जाके करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। सेटअप में जाके जो ऐप लॉन्चर है उसमें तो टैब्स का नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा ऐप है। लॉन्चर में नहीं, क्विक फाइंड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्विक फाइंड का ऑप्शन अच्छा, है। ठीक। हाँ, वहाँ पे टैब्स डालो तो दैट इज वर्किंग एज अ गूगल तो सेल्सफोर्स वहाँ पे क्रिएट करो। ये सर मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा करके क्रिएट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया मेरा। एंड आफ्टर दैट अगर मेरे को टैब क्रिएट करना हो तो मैं बता रहा हूँ, टैब क्रिएट करना तो ऑप्शन है, या तो हमने ऑब्जेक्ट में ही क्रिएट कर सकते हो या फिर क्विक फाइंड में टैब्स में जाके कर सकते हो। You need to go to the quick find and you need to go to the tab and वो 3 डॉट्स जो होती है, राइट? नहीं, वो तो ऐप लॉन्चर होता है 3 डॉट्स में, जो उसके नीचे क्विक फाइंड लिखा हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ये टैब्स पे जो है क्विक फाइंड में मैंने टैब्स में किया है, तो टैब्स में जो मुझे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स, ये इसमें से बनाना है, और उसके नीचे पे वेब टैब्स हाँ, है, कस्टम विजुअल ऑब्जेक्ट टैब टैब्स है, से बनाना, बिल्कुल। आपको कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स में सेक्शन में ही और आपको फिर अपना ऑब्जेक्ट दिखेगा। न्यू पे हाँ, क्लिक करके मैं स्क्रीन फिर शेयर कर ये रहा हूँ गाइस, एक बार देखो। हाँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो हम्म, जाएगा। एक सेकंड, नई और बना दिया है। सो जैसे आप जाओगे सेटअप पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल तो सेटअप। अब यहीं पर हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, क्रिएट पे गए, कस्टम ऑब्जेक्ट, और क्रिएट कर दिया। हॉस्पिटल कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में। सेटअप में जाओगे आप इस तरीके से, यहाँ जाओगे आप, यहाँ पे क्विक फाइंड में आपको टैब्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्विक फाइंड बोलते हैं, ठीक है। सो यू विल गो टू द क्विक फाइंड, यू विल फाइंड हियर टैब्स ऑप्शन, और यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। मेरे को तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं और है नहीं, हियर यू विल क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करो आप। टैब्स में क्या क्रिएट करना, टैब का क्या नाम लिखना है या उसका टैब का नाम आप ऑब्जेक्ट के नाम से ही लिख सकते हो, जो भी आपका हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट लिख लो।
ठीक है। अच्छा, मैंने अभी ये अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मुझे ये टैब में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट में दे रहा है ऑप्शन। Yes, come again. मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय का कस्टम ऑब्जेक्ट, तो जब मैंने टैब्स में क्रिएट किया तो वो मुझे फिर ऑब्जेक्ट में वो ऑप्शन दे रहा था एम्प्लॉय का, तो वही मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर टैब स्टाइल ले लिया। नेक्स्ट करके सेव फिर कर लो। तो नेक्स्ट करके सेव आपका करूँ, टैब, ठीक है। हाँ नेक्स्ट करके सेव कर लो। ठीक है। सर ये पहले सेटअप पे जाना है, सेटअप से आफ्टर दैट हम जाएंगे कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, कस्टमर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आफ्टर दैट होम पे हमें टैब्स ऑप्शन पे, टैब्स में जाकर के न्यू पे फिर वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अब जो अब मैं देख सकता हूँ, मैंने एक हॉस्पिटल क्रिएट करा था, ये टैब सेटअप्स में टैब्स का वो दिखा रहा है और उसमें मेरे पास 3 वो आ गए। एक मतलब हमने जो प्रीवियसली क्रिएट करा था बुक्स, एम्प्लॉयज एंड हॉस्पिटल, मैंने अभी क्रिएट करा है। ठीक है, गुड सर। ठीक है ना। अब इसमें हॉस्पिटल जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है या 3 आ रहे हैं ना, वहाँ पे आप अपना हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट एज वेल। एंड आपने सर में एक और प्रोसेस बताया था ना इसको क्रिएट करने का। राइट, वो प्रोसेस था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में ही ऑप्शन आता है हमारे पास जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। करेक्ट। एक मैं वैसे भी अलग नेम से क्रिएट करता हूँ, जैसे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे गए, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही आपने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो उस पर मैंने कार्ड का क्रिएट करा, ठीक है, कार्ड्स। तो यहीं पे एक लॉन्च न्यू कस्टम टैब वाला ऑप्शन आता है। लॉन्च न्यू कस्टम टैब से यूजर आपको सेव, ठीक है, पुट द टैब डायरेक्ट में टैब स्टाइल आपने पुट कर दिया। सारे मेरे को सारी एप्लीकेशंस में भी दिखाने हैं। हिट ऑन सेव और फील्ड्स में अगर हम देखें तो 4 फील्ड्स मेरी यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाती हैं। नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड ओनर। दीस 4 फील्ड्स गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, अभी मैं जब खोल रही हूँ तो मेरा ये सामने एक तो एम्प्लॉयज का आ रहा है, जो इसका टाइप लिखा आ रहा है कस्टम टैब डेफिनेशन, और एम्प्लॉय का आ रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। वहाँ पर आप जहाँ खोल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं न्यू टैब में खोलती हूँ और मुझे सेटअप में जाके एक और कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो रीसेंट आइटम्स में मुझे ये एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय शो कर रहे हैं। एम्प्लॉयज में मुझे कस्टम टैब डेफिनेशन और एम्प्लॉय में मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। मैं व्हाट्सएप पे भेजूं?
ठीक है, भेजो व्हाट्सएप। जी मैंने भेजा। तो वही तो रिसेंट आइटम्स पे यहाँ पे शो होता ही है कि जो भी आपने रिसेंट एक्टिविटी करी है, ठीक है। कि आपने अच्छा टैब मुझे बनाया। एक और अगर बनाना आपको एक और अच्छा बनाना है तो आप गियर आइकन पे जाके आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना पड़ेगा। ऊपर देखो होम और ऑब्जेक्ट मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट मैनेजर ऑप्शन। दिखाए कौन सा, ये जो गियर आइकन है ना सेटअप इसमें आ रहा नहीं, है गियर आइकन पे नहीं, होम और ऊपर ऑब्जेक्ट मैनेजर देखो, होम पे। मिडिल ऑफ द स्क्रीन आपको दिख रहा है ना होम और ऑब्जेक्ट मैनेजर, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाइए जी एंड यहाँ से और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट पे। क्रिएट का ऑप्शन आएगा, फिर कस्टम ऑब्जेक्ट जी क्लिक करके आएगा, then you can again enter the whatever object that you again want to सही। create label for label object बनाने और enter कर सकते हो। ठीक है, जी कि ये मैंने हॉस्पिटल के नाम से जो है वो न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें और टैब में क्या डिफरेंस है? टैब क्यों बना रहे हैं और ये कस्टम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? हम टैब डिफरेंट क्यों, हम टैब भी बना रहे हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो सकता है डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट आप डाटाबेस की आपको एपीआई नहीं दे सकता है, बट अगर आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको टैब क्रिएट करना जरूरी है, वो बिना टैब के नहीं होगा। अच्छा मैंने जैसे हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे अब इसका टैब भी उसी नाम से बनाना पड़ेगा? तो वो मैं सेटअप में जाके बनाऊंगी या फिर ऑब्जेक्ट में होम पे जाके बनाऊं? क्या चीज होम बनाना पे है क्या आपको? है? हॉस्पिटल का मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे अब उसका टैब बनाना है। टैब बनाना तो कोई सेटअप पे जाना पड़ेगा आपको, यू नीड टू गो टू सेटअप। अगर आप क्विक टैब फाइंड वहीं पे। से बना ले करो ना, आप ना जब ऑब्जेक्ट चेक बॉक्स चेक करके वहीं से बना ले करो आगे के लिए। अभी तो आप अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है तो ऑप्शन फिर हमारे पास ये बचता है, क्विक फाइंड में जाइए और यहाँ टैब्स में जाइए, हियर यू विल बी गेटिंग ऑन द टैब्स, यहाँ पे टैब्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ टैब्स के ऑप्शन में जाओगे एंड देन हियर उसको जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उस वक्त नीचे लाउंज का वो ऑब्जेक्ट दे रहा, वो एक ऑप्शन दे रहा होता है, तो सेव करने से पहले अगर हम वो बना लें तो टैब बन सेट जाएगा। भी कर लो, डायरेक्ट टैब की स्क्रीन पे वो लॉन्च हो जाएगा। अगर आपने वो कर लिया तो वो डायरेक्ट इस स्क्रीन पे लॉन्च हो जाता है एंड देन फिर अलग से हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अलग ही से बन बनाने की जाएगा। जरूरत नहीं होती, बट अपने नेक्स्ट टाइम सेव करना होता है एंड बाकी स्टेप्स वो खुद कर लेता है। ठीक है। सही है। अब मेरे पास ये टैब्स में दो कस्टम टैब्स बन गए, एम्प्लॉयज और हॉस्पिटल्स। फील्ड्स बनाओ अब कुछ, फिर हमने फील्ड्स का डिस्कशन किया था ना, जैसे ये आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रखा है, आई थिंक आपने ही बना रखा होगा, तो ये जैसे फील्ड्स बना लो आप, ये वाली फील्ड्स जैसे नंबर टैब की फील्ड है, पता है ना फील्ड्स कैसे बनती हैं कस्टम फील्ड? बता देता हूँ दोबारा से। एक और ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, अब on this particular object if I need to create some fields, हम fields कैसे create करते हैं, फिर click on new, जब कभी भी हम फील्ड क्रिएट करते हैं then it will ask you like कि आपका किस टाइप की डाटा की आपको फील्ड क्रिएट करनी है,
ऑटो नंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई बिल आता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहता है। सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर फील्ड and the number is automatically incremented for each new record. Formula, roll up, summary, lookup, master, export lookup ये बाद में देखेंगे। चेकबॉक्स फील्ड क्या हो गया? ट्रू एंड फॉल्स। अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स वैल्यू। करेंसी, जैसे अगर कोई सैलरी टाइप की फील्ड अगर आपको स्टोर करनी है, डेट, डेट टाइप, डेट एंड टाइम टाइप की, ईमेल, ईमेल टाइप की, जियो लोकेशन में लोकेशन टाइप की अगर आपको फील्ड स्टोर करनी है, नंबर में नंबर टाइप की अगर आपको फील्ड करनी है, परसेंटेज है परसेंटेज, फोन में फोन, पिक लिस्ट में पिक लिस्ट, जैसे कोई स्टेट हो गया या कोई सिटी हो गई जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी, उन वैल्यू से हम एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में टेक्स्ट टाइप की फील्ड, टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट एरिया, लॉन्ग लॉन्ग, रिच में रिच, एंड एनक्रिप्टेड में एनक्रिप्टेड टाइप की फील्ड हम स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आई क्लियर। सर स्टेट अगर करनी हो तो पिक लिस्ट से होगी ना? करेक्ट। जैसे कार की, जैसे मेरे को ये करनी है, कार का ब्रांड क्या है, ठीक है, सो उसमें मेरे पास अलग अलग वैल्यूज है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी पिक लिस्ट, नेक्स्ट it will ask you the brand, what exactly is the brand, label name, then you just enter the values. It can be W. I want to make this field visible to each and every profile right now. Clicking on next and clicking on so this is how we can create the different fields. जैसे मैंने brand field create किया है, ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को कोई और फील्ड क्रिएट करनी है, जैसे माइलेज फील्ड अगर मेरे को यहाँ क्रिएट करनी है, नंबर फील्ड हो जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इज एक्जेक्टली इज द माइलेज ऑफ दिस कार, click on next and save। और अगर आपको फील्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है, if you want to create the field as यहाँ पे क्रिएट कर दी and that field is cost, ठीक है, so cost I am putting it as currency, okay, like कितनी cost है कार की हमारे पास, वो मैं currency field में रखती हूँ, that is the cost of click on next and next one. So this is how we have created the different fields here. तो ये फील्ड्स क्यों बनाते हैं हम? फील्ड्स इसलिए बनाते हैं जैसे अभी हमको, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे अगर हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट पे देखें तो बस 4 फील्ड्स आती हैं। वो हॉस्पिटल के सिटी में रिलाई करता है, कितने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स वर्क कर रहे हैं हमारे पास उसमें, तो वो सब डाटा कैप्चर करना है। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट पे पहले फील्ड्स क्रिएट करनी पड़ेगी और उस फील्ड्स पे वो डाटा हम कैप्चर करेंगे। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नंबर क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ व्हाट इज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, आधार कार्ड नंबर क्या है एम्प्लॉय का, सिटी क्या है, फीडबैक, एम्प्लॉय कहाँ रहता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको स्टोर करनी है तो फॉर दैट वी शुड बी क्रिएटिंग अ फील्ड्स, और फिर आप रिकॉर्ड क्रिएशन पे वो सारी फील्ड्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको फील्ड की वैल्यू एंटर करनी है। जस्ट फिल दोज वैल्यू, और अगर आपको फील्ड की वैल्यू एंटर नहीं करनी है देन डोंट एंटर दैट। ठीक है, मतलब ये जो है वो हमने जो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर बनेंगे ये। बना लो आप, ये इस ऑब्जेक्ट को आपका बनाया हुआ है ये, ठीक है, जी। इसे बना लो fields। अगर रितेश आपके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी फील्ड्स बनी हुई है, टेक इट अपॉन अदर ऑब्जेक्ट लाइक कार ऑब्जेक्ट या किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, अगर नहीं बनी हुई है तो ये फील्ड आता है। Yes, sir.
सॉरी, मुझे एक दफ़ा दोबारा बताइएगा, ये अपने फ़ील्ड्स कहाँ से देखनी थी? कहाँ से बनानी थी? ऑब्जेक्ट मैनेजर से या होम पे? मदिया ये ना ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके क्रिएट होगा। ठीक। मुझे अभी भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, सॉरी।
Hello, sir, are you there? बोलो। हाँ जी सर, मैं कह रहा था जैसे मेरे पास ये कार्स का वो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मुझे सपोज एक फील्ड क्रिएट करनी है, ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। बट मैं आई मीन मैं चाहता हूँ उसमें जो ईयर हमारे डले वो 10 से ही डले, मतलब उससे नीचे की कोई परचेज में उसमें एंटर ही नहीं हो। वो कस्टम उससे करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड उससे नहीं होगा। उसके लिए आपको तो वो क्रिएट करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट, LWC कंपोनेंट। नॉर्मल डेट अच्छा। वाला वो नहीं करता। नॉर्मल डेट फील्ड वो नहीं करेगी। नॉर्मल डेट फील्ड में तो ऑटोमेटिक, अगर आप वैसा डालना चाह रहे हो कि नॉर्मल डेट फील्ड आपने क्रिएट करे ईयर ऑफ परचेज 2010 के से पहले की ना करे, तो हम वैलिडेशन रूल क्रिएट कर सकते हैं कि अगर 2010 से पहले की ईयर की अगर आ रहे हैं, सो इट विल नॉट अलाउ। तो वैलिडेशन रूल क्रिएट कर सकते हो उसमें। हाँ, वही मतलब कि 2010 से ऊपर वाले होने चाहिए, जैसे 10, हाँ, 11, 12। तो वैलिडेशन रूल हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें। तो वैलिडेशन रूल जब पढ़ाऊंगा जब कर लेना। अभी वैलिडेशन रूल अभी टॉपिक ठीक है इसमें। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा सर, मैं ये यस मदिया बोलो। जी, मैं जैसे फील्ड है ना, अभी हम्म आपने जो एक वो टास्क दिया था, उसमें हम्म मैं टेक्स्ट में जाके सिटी का नाम, सिटी लिख रही हूँ फील्ड लेबल में, तो फिर वो हम्म मुझसे लेंथ मांग रहा है। लेंथ 18 डाल और दो। 18। अच्छा, ठीक है। फिर फील्ड नेम में सिटी नेम भी लिखना है नहीं, बस सिटी या बस सिटी सिटी लिखो। लिख दूँ? जो लेबल नेम लिख रहे हो वही इसमें लिखो फील्ड नेम में। अगर फील्ड लेवल में सिटी रखा है तो फील्ड नेम में भी सेम रखो, तो अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, बस सेव कर दें। अच्छा, मैं ये ठीक है, ठीक है। और सर ये डेटा टाइप में ऑटो नंबर और नंबर में क्या डिफरेंस है? नंबर फील्ड तो आपकी नंबर टैब की फील्ड, जैसे माइलेज मेरे को हाँ लेना, इस जी। तरीके से होगी। ऑटो नंबर में क्या होता है, सिक्वेंशियली नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है। जैसे 001 हुआ, 002, 003, 004, सिक्वेंशियली एक एक करके हमारे पास ऑटो नंबर में नंबर क्या होता रहता है हमारे पास, एक एक करके इंक्रीज होता रहता है। दैट इज एन ऑटो नंबर फील्ड। ओके, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी फिर? नहीं, उसमें एक एक करके नंबर आपका बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपने पहला रिकॉर्ड क्रिएट करा तो 001 हुआ, दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो 002 होगा, तीसरा करोगे तो 003 होगा। इस तरीके से ऑटोमेटिकली उस पर नंबर हमारा इंक्रीज होता रहेगा। ओके ओके। तो सर जैसे मैंने एक चीज पूछी थी अभी ईयर ऑफ परचेज की, तो ये चीज तो मैं पिक लिस्ट से भी मतलब कर सकता हूँ? क्या हम अगेन दोबारा बोलना। अ, जैसे मैंने अभी कार सेशन में आपसे मैं बात कर रहा था ना उसकी की ईयर ऑफ हम्म परचेज की, तो ये हम्म। चीज मैं पिक लिस्ट से भी तो कर सकता हूँ? मतलब उसमें अगर मैं वैल्यू 2010 2011 ऐड कर दूँ तो? बिल्कुल कर सकते हो, पिक लिस्ट से कर सकते हो। लेकिन पिक लिस्ट में कितनी आगे के लिए आपने कर दिया, ईयर ऑफ परचेज आपने डाल दिया 2010 से, फिर 2025 तक डाल सकते हो। फिर 26 अगर आया हम्म। तो फिर क्या करोगे, फिर दोबारा से पिक लिस्ट फील्ड को अपडेट हाँ, करोगे। फिर 27 आया फिर दोबारा अपडेट करोगे। करेक्ट। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो पिक लिस्ट में है, स्टेट फॉर एग्जांपल मैंने डाली है,
और स्टेट में भी आगे वो पूछता है स्टेट नेम्स, तो अभी ये स्टेट डाल के नेक्स्ट करना है या इसमें डेट वैल्यूज डाल के आप डालनी है? वैल्यूज डालोगे, उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ग्लोबल वैल्यू पिक लिस्ट सेट होता है, तो ग्लोबल वैल्यू पिक लिस्ट सेट अभी हम नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन होता है पिक लिस्ट फील्ड का, तो एंटर वो वैल्यूज, वैल्यू हम करेंगे, तो वो वैल्यू आप डालोगे उसमें, ठीक है। उसमें वैल्यूज डालते हैं जितनी भी आप डालनी है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक तो हो गया मेरा।
हो गया गाइस आप लोगों को? हेलो, जी, अभी तक तो जी। ठीक है। देन मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड ईमेल फील्ड। लाइक टेक्स्ट फील्ड में तो हमारे पास क्या होते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू जो होती हैं, वी कैन एक्सेप्ट दैट नॉर्मल वैल्यूज। बट अगर मैं ईमेल फील्ड की बात करूँ तो ईमेल फील्ड में मेरे पास जो है वो नॉर्मल वैल्यू हमारे पास को एक्सेप्ट नहीं होती है। लाइक ऐसा होता है टेक्स्ट फील्ड में, क्या है, सपोज करो आपको ये वाली वैल्यू स्टोर करानी है, test89@gmail.com। अब अगर मेरे को यही वैल्यू स्टोर करानी है इसमें, देन अगर टेक्स्ट फील्ड मैंने ले लिया तो अगर मैंने test89 भी डाला तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इट कैन एक्सेप्ट दैट एज वेल, आइडियली नहीं करना चाहिए बट इट विल एक्सेप्ट दैट एज वेल। So since it will accept that as well, that's the reason, that's why we are not going with this, so we are going with the email field. So ईमेल फील्ड की मैं अगर बात करूं तो ईमेल फील्ड में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास इन द ईमेल फील्ड वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड वैलिडेशन। ईमेल फील्ड में मेरे पास स्टैंडर्ड वैलिडेशन होता है, ठीक है। तो सिंस इन द ईमेल फील्ड वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड वैलिडेशन, सो देयर इज नो इश्यूज, हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर हमको इस वैल्यूज का चाहिए होता है, सो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ईमेल फील्ड टाइप। क्लियर है गाइस? दोबारा बताइएगा टेक्स्ट और ईमेल के इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ये इस टाइप की वैल्यू अगर हमको चाहिए, ठीक है, आई नीड दिस टाइप ऑफ वैल्यू, ईमेल फील्ड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने टेक्स्ट फील्ड टाइप बना लिया एंड आपको वैल्यू चाहिए इस टाइप से, और अगर आपने उस ईमेल फील्ड में वैल्यू वाली टेस्ट देना है, तो सिंस ये टेक्स्ट फील्ड टाइप है, ये एरर नहीं देगा, इट विल अलाउ अस टू एंटर द वैल्यू बिकॉज इन द टेक्स्ट, राइट, बिकॉज फील्ड टाइप टेक्स्ट है, तो उसको नहीं पता कि आपको फॉर्मेट @ वाला चाहिए एंड उसके बाद इस तरीके से वैल्यू चाहिए। तो ईमेल फील्ड टाइप में क्या होता है, ईमेल फील्ड टाइप इज हैविंग अवर स्टैंडर्ड वैलिडेशन। ईमेल फील्ड टाइप में स्टैंडर्ड वैलिडेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सो सिंस द स्टैंडर्ड वैलिडेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ईमेल फील्ड टाइप, सो इसमें कोई भी इशू यहाँ पर हमारे पास नहीं होने वाला, वी कैन नॉर्मली डू दैट। मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल ईमेल वगैरह कोई किसी की ईमेल का डाटा हमें स्टोर करना हो, तो हम ईमेल में करें, टेक्स्ट में ना करें, या टेक्स्ट में भी कर सकते हैं? नहीं, ईमेल फील्ड टाइप करो, टेक्स्ट में मत करो। टेक्स्ट में नहीं करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स होता है कि हमारे पास जो ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस किसी का लिखा होता है, वो डायरेक्ट हम उसको क्लिक करते हैं तो वो हमें उसके वो हमें अगर कर उसको ईमेल सकते भेजनी है हो तो वो बट उस पे ले उसमें जाता है। रिस्क रहता है। अगर आपने टेक्स्ट कर दिया तो उसमें रिस्क ये रहेगा, बेस्ट प्रैक्टिस अलाउ, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस सेल्सफोर्स की कहती है कि आप इसको ईमेल में करो। और अगर इवन इफ आपने टेक्स्ट में कर दिया तो क्या होगा, अगर आपको इस तरीके से फील्ड टाइप एंटर करोगे, जैसे test89 test890, तो ये प्रॉब्लम देगा, इट विल कॉज एन इशू, इट विल नॉट अलाउ दैट, अलाउ। जी, ओके, ठीक है। सो ये तो हमारा जितना हमने अभी तक पढ़ा है सारा हो गया गाइस। अब तो कोई डाउट नहीं है नितिश, क्लियर हो गया? नो सर, यस सर। हमारे डिफरेंट टाइप्स के ना एडिशंस अवेलेबल होते हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस इन सेल्सफोर्स। जैसे अभी तो हमारा वी आर वर्किंग ऑन द डेवलपर एडिशन, बट डेवलपर एडिशन ही एक एडिशन नहीं है, हमारे पास अलग टाइप के डिफरेंट एडिशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। वी आर हैविंग डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एडिशन एज वेल। अलग टाइप के और एडिशन क्या है हमारे पास, ये है डिफरेंट एडिशन जो है सेल्सफोर्स में, दैट इज पहला है एसेंशियल एडिशन। सो
एसेंशियल एडिशन में क्या होता है हमारे पास, ये पेड एडिशन है जिसमें हमारे पास वेरी बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं विद अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स एंड कॉस्टिंग इज $25 पर डॉलर पर मंथ पर यूजर, तो ज़्यादा यूज़ का नहीं है। Second, the professional edition, in which we are getting almost all the standard features, and costing is $75 per month per user. Third, enterprise edition. Enterprise edition से मेरे पास कोडिंग का फीचर मिलता है. That means if I want to do the coding, so we can do the coding as well from the enterprise edition. Like course.com प्लेटफॉर्म का फीचर मेरे को यहाँ मिलेगा, so कोई भी कोडिंग करनी है तो मैं कोडिंग कर सकता हूँ. कॉस्टिंग है मेरे पास $150 पर मंथ पर यूजर. लास्ट मेरा है अनलिमिटेड एडिशन, इसमें स्टैंडर्ड फीचर, कस्टम इंटीग्रेशन, 24/7 सपोर्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स भी. कॉस्टिंग मेरे पास है $300 पर मंथ आती है. सो ज़्यादातर लोग जो प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें तो हम ये यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास वी आर गेटिंग स्टैंडर्ड एडिशन, कस्टम इंटीग्रेशन एंड 24/7 सपोर्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स. इसमें स्टोरेज 10 GB है, बिकॉज डेवलपर एडिशन जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. लाइक ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग स्टैंडर्ड फीचर, कस्टम, हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. सो व्हाई वी आर गोइंग विद द अनलिमिटेड एडिशन, बिकॉज डाटा स्टोरेज जो डेवलपर एडिशन मिल रही है दैट वी आर गेटिंग इट एज 5 MB, दैट इज नन टू नथिंग. और वहाँ पे जो डाटा स्टोरेज मिल रही है दैट इज वो मिल रही है 10 GB. डेवलपर एडिशन में नंबर ऑफ सेल्सफोर्स लाइसेंसेस है वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास. अनलिमिटेड एडिशन हमारे पास अराउंड 500 नंबर ऑफ सेल्सफोर्स लाइसेंसेस हमको यहाँ पर. दैट वाज क्रिटिकल फॉर एसेंशियल एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, एंटरप्राइज एंड अनलिमिटेड. एसेंशियल और प्रोफेशनल में स्टैंडर्ड फीचर, एंटरप्राइज से हम कोडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड एज वेल एज कस्टम फीचर्स चलते हैं. अगर कोडिंग आपको करनी है कॉस्टिंग $50 पर मंथ, फिर अनलिमिटेड एडिशन हमारे पास. नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजेस इन सेल्सफोर्स. रिलीजेस क्या होती है हमारे पास? अपडेट्स. अब अगर इफ सेल्सफोर्स वांट्स टू गिव एनी अपडेट्स, दैट मींस इफ अ सेल्सफोर्स वांट्स टू गिव एनी न्यू फीचर add, or if the Salesforce wants to remove any existing feature, so how this can be done? If a Salesforce wants to add any new feature, if a Salesforce wants to remove any new feature, so it's not like that every day Salesforce is doing that activity. If Salesforce has to add the new feature or Salesforce has to remove the new feature, then they cannot do that activity daily. No, they are doing it in every 4 months, because a lot of projects, lot of businesses are associated with the Salesforce. So वो क्या कर रहे हैं हमारे पास हर 4 months में हमारे पास एक रिलीज डॉक्यूमेंट they are going to give you. In that release document, we are having all the updates, whatever new things are there, whatever existing things they want to remove. So, and we can read that updates and we can see the impact, what exactly is an impact of that. Okay, so we are having 3 basic release: winter, summer and spring. ईयर के साथ वो लग जाता है, जैसे 25 चल रहा है तो 25 लगा दिया. अब जैसे विंटर 26 नेक्स्ट रिलीज होने वाली है हमारे पास. ठीक है, सो विंटर 26 चल रही है. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास हर 4 मंथ्स में रिलीजेस चलती हैं हमारे पास. माय क्वेश्चन इज टू यू इज, हमारी करंट रिलीज अभी क्या चल रही है एंड व्हाट विल बी आवर फ्यूचर रिलीज. हमारी फ्यूचर रिलीज हमारे पास क्या होने वाली है, व्हाट विल बी आवर करंट रिलीज एंड व्हाट विल बी आवर फ्यूचर रिलीज. दैट यू नीड टू बी. इनका क्या पर्पस है रिलीजेस का? पर्पस कुछ नहीं है, बस आपको नए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ये. ठीक है. तो अगर वो जैसे सपोज फॉर अगर हम फ्लोज यूज कर रहे हो तो फ्लोज में कोई नया फीचर आ गया मेरे पास, तो वो हमने पढ़ लिया, वो हमारे से काम इजी हो गया. या फिर कोई एग्जिस्टिंग चीज है, वो सेल्सफोर्स कहती है कि अब मेरे को सेल्सफोर्स में वो चीज नहीं रखनी है, आई वांट टू रिमूव दैट. तो कोई भी एग्जिस्टिंग थिंग रिमूव करना या कोई भी नई चीज ऐड करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजेस इन सेल्सफोर्स. लाइक क्या अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में? करेक्ट, वट एवर अपडेट्स, उसके लिए हमारा रिलीज डॉक्यूमेंट बनता है. ठीक है, एंड दैट रिलीज डॉक्यूमेंट वी कैन गो थ्रू. फिर इसी तरीके से एक थ्योरेटिकल टॉपिक है सैंडबॉक्सेस, जो आप जिसमें आप काम करोगे. ठीक है, लाइक अभी तो हम फ्री और में काम कर रहे हैं, दैट इज डेवलपर एडिशन. बट इसके बाद हमारे पास सैंडबॉक्सेस आती हैं, एक्सेप्ट रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर डेव एंड क्यूए. 4 सैंडबॉक्सेस होते हैं, डेवलपर, डेवलपर प्रो, पार्शियल कॉपी, फुल कॉपी. तो ज़्यादातर हमारा काम इन 2 में रहता है, डेवलपर या डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में. ठीक है, बिकॉज डेवलपमेंट हमारा हमेशा डेवलपर एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में होता है ऑलवेज. पार्शियल कॉपी फॉर में क्या होता एग्जांपल है?
जी, जैसे मैं एडमिन का खाली कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये समझना ज़रूरी है। सैंडबॉक्स तो आपको इसी में भी करना है ना, एडमिन के लिए अलग से सैंडबॉक्स नहीं आएगा। आप या तो डेवलपर सैंडबॉक्स में काम करोगे, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में काम करोगे। ठीक है। तीसरा पार्शियल कॉपी, जो भी क्यूए का वर्क होता है, मतलब टेस्टिंग। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, कुछ फील्ड्स बनाई, कुछ क्लोज बनाए, तो वो टेस्ट कहाँ होंगे? पार्शियल कॉपी में होंगे। और फुल कॉपी क्या होती है हमारे पास? दैट इज अ प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास प्रोडक्शन की जो कॉपी होती है हमारे पास, वो हमारे पास फुल कॉपी होती है हमारे पास। 4 टाइप्स के सैंडबॉक्स: डेवलपर, डेवलपर को, पार्शियल कॉपी एंड फुल कॉपी। तो यूजुअली सर सब आई मीन इसमें डेवलपर एंड डेवलपर प्रो में ही काम करते होंगे, राइट। मतलब इवन जो एडमिन वगैरह है वो भी ये यूज करते हैं, जो हाँ, खाली तो जिनका एडमिन के लिए ऐसा नहीं है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग ये नहीं है कि वी आर गेटिंग सम अदर डिफरेंट सैंडबॉक्सेस। उनके लिए हम अलग से कोई सैंडबॉक्स नहीं ला रहे हैं। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द सेम सैंडबॉक्सेस। हम इन्हीं सैंडबॉक्सेस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई सैंडबॉक्सेस का एक्चुअली पर्पस क्या है? क्या चीज़ है सैंडबॉक्स? और जिसमें आप काम करोगे। अच्छा, राइट, उसको एक नया नाम दिया सैंडबॉक्स। ठीक ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतने रखते हैं, बिकॉज आपका पिछला सारा कवर हो गया है। ठीक है, बाकी है। कल तो जी, सारा प्रैक्टिकल टॉपिक्स ही बचे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल मैंने आई ट्राई टू कवर इट टुडे। सो पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स, रिलेशनशिप्स, मतलब ये टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ठीक है। सर वी विल क्लास मीट। इसी टाइम पे रखेंगे या थोड़ा और जल्दी करने की यूजुअल टाइम। पॉसिबिलिटी है? थोड़ा लेट नहीं करिएगा, ये टाइम रखिएगा प्लीज़। हाँ नहीं, ये तो मैं आज एक्चुअली मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तो मैं वहाँ गया था। सो दैट्स जी, व्हाट मैंने सोचा कि आपकी क्लास पहले हो गई है, सो आई जी, ट्राई टू क्योंकि फिर वो सर मंडे से वही रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाती है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। No, 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 no. We will keep it 2 p.m. IST at our time. ठीक है, 2 to 4 p.m. 2 IST पीएम? पर। Yes, 2 p.m. अच्छा, आपके वही हिसाब जो, से 2 पीएम? हाँ मेरे हिसाब से 2 p.m. IST है, आपके हिसाब मेरे से साढ़े आप। सात हो रहे होंगे। हाँ, साढ़े 5 सात साढ़े घंटे 5 आप। घंटे आ गए। हाँ, 5:30 घंटे आगे तो 7:30। तो वही आपका टाइम यूजुअल लाइक हम मीट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक ओके, हाँ ठीक है। गाइस, जैसे 15 मिनट्स बाद तो मीट हुआ ये था। इसकी पीडीएफ मेरे को यही ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आप शेयर करोगे? तो डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर होगा ना, आपके पास नहीं है। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आप मैं ये मेरे को पीडीएफ अपना का पूछ रहा ईमेल आईडी दे दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जस्ट था। ओके, मैं आपको यही शेयर कर देता हूँ। मुझे भी सर शेयर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी पुट करो, मैं दोनों को शेयर करता हूँ।
फिर मुझसे एक्सेस मांग रहा है। ठीक है, हो गया। ये क्लास खत्म करेंगे?